चलो लेट्स बिगिन। देखो इनिशियली जितना भी कंटेंट है सब क्लास 9th या 10th का है, जो सबने पढ़ा हुआ है। वर्क एनर्जी पावर में जो वर्क का जो कॉन्सेप्ट वो लोग ने डिस्क्राइब किया है, दैट इज एक नया चीज़ है, दैट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था क्लास 9th या 10th CBSE ICSE, उसमें W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। हाँ, इंक्लाइन प्लेन पे हॉरिजॉन्टल फोर्स या फिर इंक्लाइन फोर्स और हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों के लिए जो फॉर्मूला था वर्क डन का, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा, उसी को एक्सप्लेन किया है वो लोगों ने यहाँ पे। सो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हमने वेक्टर्स में ही, मतलब मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया था। If there are two vectors A and B and the angle between them is theta, then the scalar product of the two vectors is given by A dot B, which is AB cos theta. We can express this equation in any of the following ways: A into B cos theta, or A cos theta into B, or B into A cos theta. Anyways, that means that scalar or dot product between two vectors can be calculated by multiplying the magnitude of one of the vectors with the component of other vectors in its own direction. मतलब तुम्हें पहले दोनों वेक्टर को एक डायरेक्शन में लाना है, उसके लिए तुम्हें किसी एक वेक्टर को दूसरे के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। दोनों की एक डायरेक्शन होने के बाद दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक का मैग्नीट्यूड एज इट इज रहेगा, दूसरे का हो जाएगा इनटू कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द डॉट प्रोडक्ट। As we have already discussed that in physics we define work done only by the means of force and when there is displacement in the direction of force, because we always need to apply force in order to produce displacement and get work. Yeah, so this is the vector representation of A and B to understand that how will be the how the work done will be calculated if A and B are the respective vectors of force and displacement. So work done by a force is defined as the magnitude of force multiplied with the component of displacement in the direction of force, or work done by a force is equal to the magnitude of displacement multiplied with the component of force in the direction of displacement. We can define the work done by a force as the dot product of force vector and displacement vector. Let F represent the force acting on an object and dx represent the displacement of the object in infinitesimally small interval of time at an angle theta with the force. इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन का यूज है। इंटीग्रेशन का यूज हमने कहां पे किया था, यू रिमेंबर? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, जब हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ निकालते थे, ठीक है, उसके लिए इंटीग्रेशन का यूज करते थे हम लोग। लॉज ऑफ मोशन में कहां पे किया था हमने? हाँ, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन, यस इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते थे। फिर वेक्टर में कहीं पे इंटीग्रेशन नहीं आया, डिफरेंशिएशन भी हार्डली कहीं आया है वेक्टर्स में। हमारे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में आया था डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, कैलकुलस का यूज। इस चैप्टर में वापस कैलकुलस आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन के जितने भी मेथड्स है या फॉर्मूले वो तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो आ गया कि अगर एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस एक बॉडी मूव करता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो वी कैन फाइंड दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ये लोग ने लिखा है बाय dw. dw is the small amount of work which is f into dx, which is f dx into cos theta. cos theta क्यों? क्योंकि हम हमेशा मान के रखेंगे कि there is an angle between force and displacement. Even if the angle is zero, no problem, we'll write cos theta.
because that is how the scalar product or the dot product of two vectors is represented. Now we integrate the above relation according to the given situation. There goes the integration part. Okay, to calculate the total work done by the force in an interval of time. Note that in general, force can change or remain constant during the given interval of time. So delta W, that is the amount of work done, is equal to F dot dx, integration of F dot dx from I to F. What is I to F? What is initial to final? Exactly. So जो infinitesimally small डिस्प्लेसमेंट है उसमें आई और एफ इनिशियल और फाइनल पोजिशंस है. ठीक है, सो ओवर दोज पोजिशन इफ आई इंटीग्रेट द फोर्स assuming that the force remains constant, then I get f dx cos theta from I to f. मैंने डॉट प्रोडक्ट को cos theta के फॉर्म में लाया. In the above equation, I and f represents the corresponding limits according to initial and final positions of the object. ठीक है, if the applied force remains constant during an interval, then we can take the force out of the integration. तुम्हें याद है ना ये वाला? यस, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटीग्रेशन करते टाइम या डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल दो और फिर हम लोग अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन. तो इसमें पहले फोर्स को हमने बाहर निकाल दिया, तो इंटीग्रेट किसको करना है? सिर्फ dx को. अगर dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम i टू f, तो क्या हमें देगा? वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विच इज डिस्प्लेसमेंट. Final position minus initial position is nothing but displacement, which is represented by delta x, which is f delta x cos theta. So equation 3 represents the work done by a constant force. So this is, you can say, the first time you have studied the whole derivation. जो 9th में या 10th में जो पढ़ा था, that was just half thing, क्योंकि उसमें वो इंटीग्रेशन का यूज नहीं था, कैलकुलस का. अब हम लोग ने तो यहाँ पे सिर्फ देखा है कांस्टेंट फोर्स. वी हैव जस्ट सीन द कांस्टेंट फोर्स. ऐसा हो सकता है ना कि फोर्स भी कांस्टेंट ना हो, फोर्स पहले थोड़ा हो, फिर धीरे धीरे फोर्स भी बढ़ता जाए, एंड देन धीरे धीरे फोर्स कम होता जाए और फिर जीरो हो जाए. मतलब फोर्स भी वेरी कर सकता है, और वो वेरिंग फोर्स में, हाँ, नहीं आएगा, फिर उसको भी अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इट्स ओन वेरिएशन. अगर नहीं, उसमें फिर, हाँ, उसमें आई और एफ होगा, लेकिन आई और एफ विल बी इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ द फोर्स. तो फोर्स को अलग लेना पड़ेगा और तुम्हें डीएक्स को अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा. उसमें बाय पार्ट बोल के एक मेथड है, उसका यूज होता है, जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट हाँ, हम लोग वो भी सॉल्व कर सकते हैं. इंटीग्रेशन में उसके लिए भी प्रोविजन है अलग से. जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, प्रोडक्ट रूल बताया था मैंने डिफरेंशिएशन में, याद है? प्रोडक्ट रूल मतलब if you want to differentiate product of two numbers or two variables or two functions, I'm sorry, product of two functions, not numbers, तो तुम प्रोडक्ट रूल यूज करते हो. तो इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल बोल के कुछ नहीं होता है, उसमें होता है बाय पार्ट्स. फंक्शन इनटू फंक्शन इज ऑलवेज सॉल्व्ड विद द मेथड ऑफ बाय पार्ट्स. बाईपास नहीं, बाय पार्ट्स. मतलब पार्ट बना देते हैं हम, पार्ट 1 पार्ट 2 सेपरेट कर देते हैं, और उसमें भी एक फॉर्मूला है, वो अप्लाई करके फिर सॉल्व करते हैं. तो इसमें भी ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल. ठीक है, इफ द फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ कंसिडरेशन, then work done by the force can be calculated by taking dot product of force vector with the net displacement vector for that interval of time. When applied force is variable, then force cannot be taken out from the integration, and in such cases we need to integrate equation 2 according to given force. According to given force कैसा होगा वो तुम्हें क्वेश्चन में बताएंगे कि force varies with distance with the help डिपेंडेड ऑन दिस इक्वेशन. मतलब एक इक्वेशन दे देंगे जिस पे फोर्स वेरी कर रहा है, जिस पे फोर्स डिपेंडेंट है, तो वो इक्वेशन को अलग से इंटीग्रेट करना है तुम्हें फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट को अलग से, और फिर दोनों को ऐड करना है या सिंप्लीफाई करना है टू गेट द टोटल वर्क डन.
तुम्हें याद है एक एग्जाम्पल था जब तुमने वर्क डन पढ़ा था, दैट when force and displacement are making an angle of 90 degree with each other, work done is always zero. क्योंकि cos 90 जीरो होता है तो fs cos 90 जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। और ये उसके एग्जाम्पल क्या थे? एग्जैक्टली, वेरी गुड। सर्कुलर मोशन उसका एक एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन में वर्क डन इज जीरो। इफ अ कूली इज होल्डिंग सम luggage on his head and walking on a straight path, then the work done by gravity on the luggage is zero. ठीक है? If a person is standing with a bag on a bus stop for 2 hours, the work done by gravity or work done against gravity by the person will be zero. ये सब में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा इस केस में। इसमें जो एग्जाम्पल दिया है वो लोगों ने ऑसिलेशन का एग्जाम्पल दिया है, पेंडुलम। पेंडुलम का कैसा होता है कि जो बॉब है वो स्ट्रिंग से टाइड होता है और उसमें जो फोर्स एक्ट होते हैं, तो मल्टीपल फोर्सेस हैं। एक तो है नीचे की तरफ उसका खुद का वेट, एक तो है स्ट्रिंग के ऊपर वो बॉब का फोर्स, दैट इज टेंशन फोर्स। तो ये लोग ने क्या बोला है कि एट एवरी इंस्टेंट टेंशन अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग इज परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में वो पेंडुलम स्विंग कर रहा है, वो जो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बीच में और टेंशन के बीच का एंगल हमेशा 90 रहता है, हमेशा। अगर वो हमेशा 90 रहेगा मतलब वर्क डन बाय टेंशन, फोर्स ऑफ टेंशन ऑन द पेंडुलम बॉब विल ऑलवेज बी जीरो। तो मतलब वो उसका केस वो लोग ने सिर्फ बताया है। यस यस, इट इज अ पार्ट ऑफ, यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मतलब डिस्प्ले, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फोर्स होगा, लेकिन नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो नेट वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ये पेंडुलम का केस है। सो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? थीटा के टर्म्स में बोलो। थीटा जब 0 और 90 के बीच में होता है तो वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। थीटा अगर 90 से बड़ा है तो? श्योर श्योर। करेक्ट। जीरो अभी हमने पढ़ा। जीरो के लिए या तो फोर्स जीरो होना चाहिए, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए, या तो दोनों के बीच का एंगल 90 होना चाहिए। ये वही सारी चीजें हैं, वापस वो लोग बता रहे हैं। हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो नया है उस पर हम फोकस करेंगे। ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट जूल है। डायमेंशनल फॉर्मूला है m1l2 T⁻²। फोर्स के भी दो यूनिट है ना, तो वर्क पे के भी दो यूनिट होते हैं। फोर्स के दो यूनिट कौन से? एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल है kgf। हम लोग ने डील किया है kgf के साथ बीच में, पहले से डील कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें भी दो यूनिट होते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ वर्क आर जूल एंड अर्ग। जूल इज SI यूनिट, अर्ग इज CGS यूनिट। 1 जूल is the work done by a force, in displacing a body by 1 meter। करेक्ट है। ठीक है, तो 1 जूल इज 1 न्यूटन पर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, मतलब 1 न्यूटन मीटर इज 1 जूल, और 1 अर्ग इज 1 डाइन सेंटीमीटर। Thus, 1 joule can also be written as 1 Newton meter and 1 erg can be written as 1 dyne centimeter, और दोनों के बीच का रिलेशन है 1 joule is 10⁻⁷ erg।
अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो। ये सब कोई नई बातें नहीं है, सब पढ़ा हुआ चीज है तुम्हें, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट देख लो क्या है। द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क आर किलोग्राम मीटर एंड ग्राम सेंटीमीटर। सो अगर मैं तुम्हें पूछूं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, केजीएफ, तो इसमें क्या था, न्यूटन मीटर, तो उसमें क्या मैं कर दूंगा, केजीएफ मीटर, या किलोग्राम मीटर भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा बताया है कि 1 kgf इज 1 किलोग्राम। ऑलवेज रिमेंबर दैट इज ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है। सो 1 किलोग्राम मीटर और 1 kgf मीटर कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय 1 किलोग्राम फोर्स, 1 kgf, in moving an object by a distance of 1 meter along the direction of applied force. It can be written as 1 kgf meter or 9.8 Newton per meter. तो 1 kgf is 9.8 Newton per meter or 9.8 joule, because 1 kgf is also equal to 9.8 Newton. इसके लिए ये रिलेशन बना है, तो ये याद रखना, क्योंकि कभी भी ये यूनिट आएगा यू कैनॉट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। And 1 gram force centimeter is 980 erg. kgf, एक मिनट ये गलत है, it should be 1 kgf meter, 1 kgf meter is equal to 9.8 joule। वो लोग ने मीटर नहीं लिखा, मीटर लिखना भूल गए। yes, this is work done का gravitational unit, this is work done का absolute unit। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल देख लें। ये एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है वो लोग ने यहाँ पे। Is it so that the work done by friction is always negative? There can be a case when the work done by the friction is positive. For example, when a block is placed inside a truck and the truck is moving with a constant acceleration such that the block is not sliding with respect to the floor of the truck. मतलब acceleration है, acceleration है, acceleration है मतलब force भी है, और force कौन सी डायरेक्शन में होता है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। तो ये जो ब्लॉक है, क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है? वेरी गुड। सो इट इज ऑलवेज राइट टू आइडेंटिफाई द यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एग्जैक्टली। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर तुम्हारी ट्रक है तो ब्लॉक रेस्ट पे है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर तुम्हारा ग्राउंड है तो ब्लॉक आगे जा रहा है, ठीक है। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि ट्रक ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? तो क्या ट्रक के फ्लोर और ब्लॉक के बीच में कोई फोर्स डेवलप होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में? नहीं, ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में? एक मिनट, ट्रक आगे जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, यू आर राइट, यू आर राइट। ब्लॉक की टेंडेंसी मतलब ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स होगा पीछे की तरफ मूव करने का, जिसको रोकने के लिए फ्लोर और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होगा आगे की डायरेक्शन में। मतलब yes, friction will have a tendency to stop the motion of the block in forward direction। सही है ना? हाँ सही है, जब तक तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन रीच नहीं करेगा तब तक वो रेस्ट पे रहेगा। हाँ, एक्सेलरेशन अगर ज्यादा रहेगा और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू रीच हो गई तो ये जो उसका मतलब मोशन है वो अब शुरू हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन है दैट इज नॉट इनफ टू स्टॉप द ब्लॉक, ठीक है। या
वही तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टर्म्स में सोचो कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारा ट्रक है, ट्रक आगे बढ़ रहा है और ट्रक अपने साथ किसको लेके जा रहा है आगे, और ट्रक की एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, तो ट्रक कौन सी डायरेक्शन में ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा? पीछे जाने का। मतलब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में हुआ? पीछे की डायरेक्शन में। उसको रोकने के लिए ब्लॉक के ऊपर फ्लोर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा? हाँ ऐसे। मतलब इफ यू अंडरस्टैंड, क्या बोलते हैं उसको, आप क्रोनोलॉजी समझिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड द ट्रक वी कैन सी दैट ब्लॉक इज इन मोशन. Which force is causing the motion of the block? Motion of the truck. Not pseudo. Which force is causing the motion of the block? He is right, yeah. Because if there were no friction, the block would slide backward, the truck would go ahead, and if we are outside, we can see that block is remaining there only. Exactly. बट अगर वो स्लाइड कर रहा है तो, हाँ, लेकिन अगर वो स्लाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन उसको आगे लेके जा रहा है. मतलब फ्रिक्शन इज हेल्पिंग द ट्रक टू टेक द ब्लॉक अहेड विथ इट. इफ द फ्रिक्शन वुड नॉट हैव बीन देयर तो ब्लॉक स्लाइड करके पीछे आ जाएगा. मतलब विच फोर्स इज कॉजिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक? इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉट द ट्रक. वेरी नाइस थिंग टू रियलाइज. Static friction between the floor and the truck and the block is responsible for the movement of the block. In the given diagram, the direction of friction and the displacement of truck are the same. Hence, the work done by friction is positive here. फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या है? जो वो कर रहा है. और हमारे पर्सपेक्टिव से फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या है? ब्लॉक को आगे धकेलने की, जो वो कर रहा है. मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस केस इज पॉजिटिव. पूरा लिख दिया. कूल. अब क्या प्लान है? You want to wait for some doubt solving? Because I can do that now. I can come there and help you out. हाँ तो I'll come there. Be ready with your doubts. I'm coming. When a weightlifter lifts weights, work is done by gravitational force. However, the cause of movement of the weights is not the gravitational force. Thus, it is always not necessary that work done by force on an object is the cause of the displacement, although this work done can be calculated. What you can understand? क्या बोलना चाहते लोग? When weightlifter lifts weights, work is done by gravitational force. I think work is done against the gravitational force. Due to gravitational force. यहाँ पे by की जगह due to लिखा होता तो ज्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट रहता. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो वेट लिफ्टर वेट आराम से उठा लेता विदाउट डूइंग एनी वर्क. बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, work has to be done, energy has to be spent in lifting the weight. So we have to do work against gravity basically. So it is not always necessary that work done by a force on an object is the cause of the displacement. जैसे फ्रिक्शन भी था ना उस केस में, सेम चीज था. फ्रिक्शन उसको अपनी जगह पे रोक रहा था और फ्रिक्शन की वजह से वो ट्रक के साथ आगे बढ़ रहा था. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ट्रक का मूवमेंट इज द कॉज ऑफ वर्क डन ऑन द बॉक्स. फ्रिक्शन का प्रेजेंस इज द कॉज ऑफ वर्क डन ऑन द बॉक्स. फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन हो रहा है उसके ऊपर. तो कितने? 1 2 3 4 5 6 काफी है. अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा. चलो शुरू करते हैं. अभी देखो थोड़ा सोच समझ के करना है क्योंकि अभी तक तुमने कुछ नहीं लिखा. मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने बहुत सारे फॉर्मूला लिख लिए, डेरिवेशन अप्लाई करना है. मतलब सिंपल क्वेश्चंस होंगे और सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे डिफिकल्ट होता है बिकॉज देर आर नॉट मेनी थिंग्स विच यू कैन अप्लाई राइट नाउ.
हाँ, it's possible that you might be required to apply some knowledge which you have learnt in the previous chapters, but अभी एक ही फॉर्मूला अपने काम का है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, हो सकता है इंटीग्रेशन का यूज आए थोड़ा बहुत, तो करना, मतलब मैं हेल्प करूंगा तुमको, बट या ट्राई स्टार्ट। और हमेशा ऐसा होगा कि द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन द क्वेश्चन विल बी इनएडेक्वेट, मतलब इनकम्प्लीट होगा। तो उसमें अजम्पशन लेने में डरना मत, बिंदास ले लो अजम्पशन, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम उसके माइंड में तो नहीं घुस सकते कि तू क्या सोच रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम अजम्पशन लेके करेंगे सॉल्व, भले गलत हो तो गलत हो, डजंट मैटर। यही करना, ये अपना लास्ट रिसोर्ट, कीपिंग इट हियर फॉर चेकिंग। व्हेन एवरीवन's done you can scroll down. Yeah. ऊपर आएगा, सो रूट थ्री इंटू फाइव अपॉन इसको वैसे ही क्योंकि बाहर से ऊपर आता है तो ये हो जाएगा टू रूट थ्री बाई टू, वही आएगा रूट टू को सीधा ऊपर ले, अच्छा थ्री टू रूट टू बाई ये यार नहीं आंसर, आंसर ये है। हाँ, अगर अगर इरेशनल डिनोमिनेटर तो टू रूट टू कट होगा, तो रूट थ्री बाय so either the answer is root three by root two or three by two. That is the answer for sure 100%. दोनों में ठीक है। टू कंडक्टिंग वायर correct, two conducting wires of the same material के equal length के equal diameter के दोनों का resistance first connected in series and then connected in parallel. The ratio of the heat produced in series and parallel. देखो सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, I square R T, I square R T, I square R T. I square R
पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में रेजिस्टेंस हो जाएगा एक में 2R होगा, एक में R/2 होगा। तो 2R इसको R/2 होगा, माइनस 2R और इसको बनिया पोटेंशियल डिवाइड हो गया पोटेंशियल हाफ हो जाएगा पैरेलल पोटेंशियल सेम रहता है मतलब जिसको जितना करंट चाहिए so we cannot use I square we have to use that we power वाला power वाला b square d by r सुन ना b square d by r 8 15 हाँ b square by r b square by r power so that is a little bit of you can say issue with current taking current because current का कैसा होता है करंट अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं जब पैरेलल कम्युनिकेशन बट सीरीज होता है ना तो इट हैज नो चॉइस देयर इज ओनली वन पाथ फॉर करंट बट पोटेंशियल थोड़ा अलग तरीके से यूज होता है तो पोटेंशियल का कैसा है कि if you connect two resistors in parallel the potential available to each resistor will be same but series में potential divide होता है so अगर potential same है parallel में तो दोनों को same करंट मिलेगा दोनों को सेम करंट मिल रहा है यू सी दोनों को सेम करंट मिल रहा है तो तेरे को क्या लग रहा है कि पैरेलल में सॉरी सीरीज में तेरे पास यहाँ पे दो रेजिस्टर है ना तो दोनों का रेजिस्टेंस हम लोग ऐड करके 2R कर देते हैं और 2R I square RT अगर फॉर्मूला देखते हैं तो G जनरेटेड इज डबल because resistance double हो गया but understand one thing series में अगर करंट सेम फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस दोनों का ऐड हो रहा है because there is just one path for the current parallel में रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है लेकिन करंट का क्या होता है पैरेलल सेम करंट जाता है जितना जरूरत है उतना करंट को ड्रॉ करना है तो भी डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द करंट मतलब पैरेलल में हीट ज्यादा जनरेट होगी हम लोग क्या करते हैं कि सीरीज में ज्यादा हीट जनरेट होती है ऐसा नहीं होता इसमें ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा निकलता है तो ज्यादा हीट जनरेट होता है पोटेंशियल इसमें डिवाइड नहीं होता इसलिए 1 वोल्ट है अभी मैं इसका लॉजिक मैं तेरे को सिंबल बता रहा हूं दोनों का रेजिस्टेंस सेम है राइट हमें रेशियो ऑफ बीइंग प्रोड्यूस करना है और रेशियो ऑफ बीइंग प्रोड्यूस टू करंट के टर्म्स नॉट रिलेक्शन तो करंट के टर्म्स में ढूंढेंगे किसमें करंट ज्यादा है इसके लिए 1 I square RT I square
Cyclists come to a steady stop in 10 seconds. During this process, the force on the cycle due to road is 200. ये तो फिर frictional force की बात कर रहे हैं and is directly opposed to the motion. Right? Frictional force की बात कर रहे हैं. How much work does the cycle do on the road? Minus 100. Work. हाँ correct. 10 meter. हाँ सही. Second. हाँ second वाले में मान लेंगे work कितना कितना होगा road space कोई तो 0 into 0 multiply कर सकते हैं. Yes. वहाँ पे ये साइकिल डिस्प्लेसमेंट का हमेशा दूसरे बॉडी पे होगा. हाँ मतलब जो बॉडी जा रही है फिर रोड के जो इसे देखना जो वर्क डन तो फिर how much work does the cycle do on the road? Cycle applies force on the road. Yes. Does the road undergo any displacement? That's the question. Then the law of conservation of energy is the law of conservation. Yeah. The road so negative work done. So equal opposite work done becomes with respect नहीं अगर मैं law of conservation of energy follow नहीं हुआ तो क्या करता है? इक्वल थोड़ी है डेसिपेट होगी पूरी है. अगर मैं बोलूं कि जितना वर्क रोड में साइकिल के ऊपर किया उसको रोकने के लिए वो पूरी की पूरी एनर्जी डेसिपेट हो गई है. रोड को नहीं मिली है उसको गलत हो गया. डेसिपेट ही होती है रोड पे डिस्प्लेस होता है किसी. जब तू बोल रहा है ना कि साइकिल के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए बहुत सही है बात. बट वो तभी सही है जब हम लोग नहीं जब हम लोग वर्क डन की बात नहीं कर रहे तब. वर्क डन की जब बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है. तो जिस बॉडी पे वर्क हो रहा है क्या वो डिस्प्लेस हो रही है? नहीं. तो तेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो एनर्जी उसको दी वो किधर गई? वो डिसिपेट हो. Energy did not get utilized for doing work or producing displacement by the road. That's why work done on the road is zero. Work में वही third law equal. तो दिखाओ मेरे को क्या. Every force is equal and opposite reaction, so equal and opposite force acts on the road due to the cycle and is equal to 200 meters, so the road doesn't move. Fair. Fair. Third law का बताने की भी जरूरत नहीं. उसने वही बताया कि -100 plus but displacement 0. So into 0 का 0 है. ये तो हाँ displacement 0 है इसलिए वो 0 है. उसने ही हम सिर्फ इतना लिखे कि रोड कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है इसलिए तो ऑप्शन 0.
act on a body and cause it to displace from point A to B. Displacement factor 1 versus nana coordinates. Displacement factor 1 versus nana coordinates. X, Y और Z के टर्म I, J और K के टर्म। हाँ, बट F2 और F1 का क्या करें? टू फोर्सेस का क्या ऐड कर दें? ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब हमको इनको ये करना पड़ेगा, रिजल्टेंट मतलब ऐड करना पड़ेगा। टोटल क्या हो जाएगा? I क्या माइनस 2J क्या, बस ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड निकाल लो डॉट प्रोडक्ट। यस, यू आर राइट। रिजल्ट F1 plus F2 yes। नहीं, RS पहले कहाँ था? यहाँ था, बाद में इतना हो गया, इतना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इज फाइनल में। Stands on the level. It is reducing by double increase. And the gym. Gym is that. The gym is okay. But gym is of length 20 meter and weight in a vertical plane of Resultant to add also a vertical cable RS is carrying the load. The diagram shows current position of the displacement by load. इस क्वेश्चन का ये नहीं रिजल्टेंट तो फोर्स का निकला वो आता है ये तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है वही तो बोल रहा हूँ माइनस स्कोर माइनस 7 आएगा -2 -1 -3 देगा। अच्छा उसको नीचे लाया, वो रोप रहता है उधर पूरा ऐसे नीचे, the load S is now on ground at a point 8 meter from A. अच्छा horizontal height and distance का अच्छा ये आम 20 लेना है 16 लेना है 16 नहीं सर दोनों लेने चेक किया अभी इधर के ऊपर आ रहा है ऐसे तो नहीं ना तो मतलब 16 कंफर्म है इधर ये तो उसका क्वेश्चन वो मेरे से RS is वो तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए नीचे लगाएगा तो बट ये नहीं
अगर इसका लेंथ 8 है और ये 16 है तो ये 30 करेक्ट है। हाँ ये 30 करेक्ट है। हाँ ये करेक्ट है मतलब ये ऐसे हाँ ये सही है आगे बढ़ सो हाँ एडजस्ट कर सकते हैं हाँ which is 8 by 16 right? So cos theta is adjacent upon hypotenuse, which is 8 by 16, which is 1 by 2. अगर ऐसे टर्न होगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर ऐसे टर्न होगा तो वर्टिकल प्लेन। इसके लिए ट्राई करते हैं आंसर आ नहीं क्वेश्चन क्या है एंगल which the object has rotated is तो क्या करते पहले डिवोटेड तो यहाँ पे टर्न तो इधर ही होगा यहाँ पे नहीं वर्टिकल और रेडियस r है और ये 2 है ACD on the basis of the above information answer forces ACA EF2 diameter 0.8 radius इसके पहले वाला करेक्ट था तो कैसा रेशियो अभी वहां से सभी को पास करने के कोर्स AC 8 AF 4
under root of r square minus 2 square, r minus 2 से equal x radius का आया 5 और तो देखो क्या मतलब है 5 minus 2 कितना होता है 3 तो इसमें 5 डाल देंगे तो दोनों करेक्ट आंसर तो रो का मास ले लेना in this case it can be r minus 4 दोनों ने एक लिया है Look this term from copper sulfate ये सब water crystallization already है excess of carbon dioxide loudness ये सब में है ये तो पूरी विशेष का अलग ही है but that is not online तो you have to write in two stages पहले initially calcium calcium फिर calcium hydrogen you have to write both names even though it is common because excess bola you cannot directly write the excess first initial and then इस पे फोर्स लगता है ऐसे होगा तो 8 आ जाता है उसका सर्कुलर ये देखना है दोनों में अभी उससे भी कोई ना कोई आंसर कितना है बता फोर अगर वो कमांड छोड़ दिया तो कितना फोर्स लगेगा पांच साइन इक्वल टू द वेट ऑफ द क्वेश्चन में लगेगा 71.5 देख मेरा लॉजिक सुन मेरा लगता है इसका अच्छा है I like the discussion finally the class is alive हाँ क्या 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 है क्या किसका करेक्ट किसका गलत हाँ you wanted more time to think प्लीज रुकना मत दिखाना नेक्स्ट टाइम आंसर सॉरी भाई सॉरी ये रेशियो से अच्छा ये लोगों ने सिर्फ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मल्टीप्लाई किया क्योंकि उसी को ऊपर ले लिया हमने
तो वर्क डन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई किया या वेट के साथ, क्योंकि चेन इज एन एक्सटेंडेड बॉडी ना, इट इज नॉट अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो उसको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डिस्प्लेसमेंट को हम काउंट करते हैं उसके वेट के साथ, तभी जाके वर्क डन आता है। एक्सटेंडेड बॉडीज में जैसे कोई भी बॉडी हम अभी तक जो काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे हैं वो पॉइंट साइज को हम उसको पॉइंट साइज बना देते हैं, बट जनरली बॉडी पॉइंट साइज होती ही। तो पॉइंट साइज में फायदा ये है कि हम एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं बस, बट यहाँ पे चेन तो लंबी होती, तो कौन सा पॉइंट कंसिडर करेंगे, स्टार्टिंग में, एंड में, मिडल में? तो मिडल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ, और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है वो ढूंढा है वो लोग, center of mass. In case of chain, because it's uniformly distributed. If it is a uniform cross section, yes. और उधर से और कैसे हैंग था पहले मुझे नहीं पता, पहले लेंथ कितना था चेन का? 3 मीटर। हाँ, तो सेंटर पे 1.5 मीटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उधर से सबका डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट लेते हैं। अच्छा, उसको हैंग किया है चेन को। अच्छा, ओ ओके। 80 मीटर 80 सेंटीमीटर हैंग है और 300 240 सेंटीमीटर बड़ी है और जो बाकी का 0.8 मीटर हैंग है और 2.3। अच्छा, तो 0.8 का वेट निकालेंगे और फिर इनटू डिस्प्लेसमेंट 0.8 लिखेंगे, 0.8 मीटर का मास रेशियो निकालेंगे तो 2.0 और जो 0.8 है और इनटू वेट ऑफ दी करेक्ट करेक्ट। इसका और भी वे और वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट इसका और भी ये मेरे को एक बार क्वेश्चन दिखाओ, फिर मैं कुछ ट्राई करूँ। डिस्प्लेसमेंट 0.8 होगा क्योंकि वो वर्टिकल डिस्टेंस नहीं जाना पड़ेगा। हमें सिर्फ टेबल पे लाना है ना इसको, और कुछ नहीं करना। मतलब उसका जो मोशन हो रहा है उसमें कितना फ्रिक्शन जा रहा है उसके अगेंस्ट वो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ टेबल पे पुल करना है उसको बस। 1 kg 3 मीटर का मास है, तो 80 सेंटीमीटर का मास कितना ढूंढा तुमने यूनिटरी मेथड से? 4/15 kg हैंग हो रहा है। उसका एक है फोर्स रहेगा ना देखने के लिए 4/15 into 9.8 That's it. वो वेट और वेट 0.8 कि 0.8 है चलो 4/2 क्या है यूनिटरी मेथड, अगर 3 मीटर का मास 1 kg है तो 80 सेंटीमीटर का कितना हो? हाँ, 0.8 मीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर टू मीटर वैसे भी कर सकते। 300 सेंटीमीटर का मास 1 kg है तो 80 सेंटीमीटर का कितना हो? तो नहीं, लेकिन नहीं, इसमें भी सोचने वाली बात है। तुम्हारा आंसर आ रहा है, ठीक है ठीक है। ये कितना है? 2.2 मीटर। ये कितना है? अब इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं पे, यहीं पे, यहाँ पे, क्योंकि ये पार्ट तो ऊपर आ चुका है, इसका तो मास कुछ नहीं लेंगे हम अगेंस्ट ग्रेविटी। हाँ, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब वो ये पॉइंट पे दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर कितना वेट एक्ट करेगा नीचे डायरेक्शन में? जीरो नहीं, कितना मास कितना है? 4/15 कितना होता है? कितना केजी होता है? 4/15 आयुष्या 0.26 kg
एक्ट करेगा इस पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास मास है और बस इसका ही डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे ना हम। उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0.8 मीटर भी होगा। नहीं, सेंटर ऑफ डिस्टेंस भी कम होता जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 0.1 मीटर कम हुआ, ऊपर आ गया, तो वेट भी कम हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। तो ऐसे करते करते डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट 0.4 ही रहेगा, क्योंकि वेट भी तो कम हो रहा है साथ में। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक इससे काम हो जाएगा तुम्हारा। मतलब डिस्प्लेसमेंट को 0.4 ले लो, टाइम्स फोर्स को ले लो, मास को ले लो 0.26 टाइम्स 10, इससे आ जाएगा आंसर। वर्क डन जूल्स आना चाहिए, ये मेरा अजम्पशन। समझा क्या हुआ? मैंने 0.1 मीटर चेन को खींचा, मास कम हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी कम हुआ, और इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी शिफ्ट हुआ, और खींचा, सेम चीज कम होते होते, मतलब मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का देखूंगा। सेंटर ऑफ मास को मैं डिस्प्लेसमेंट मान के चलूंगा, और वेट जो नीचे हैंग हो रहा है उतने पार्ट का बस। जब लोड रहता है तो उसमें सेंटर ऑफ मास तो लोड का सेंटर ऑफ मास होता है। एग्जैक्टली रोप के केस में वो सेट हो जाता है, एग्जैक्टली। तो उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होते जाएगा, वेट कम होते जाएगा, और वर्क डन उस हिसाब से कम होते जाएगा। इफ यू ऐड, इंटीग्रेट ऑल दोज वैल्यूज, यू गेट द सेम आंसर। सो इसलिए सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेशन करना ज्यादा इजी हो। ठीक है, KGF। हमने किया हुआ है। तू था तो पीछे नहीं रहा, नहीं मतलब ऑनलाइन। हाँ, बट हमने किया हुआ है ऐसा कुछ। यू आर राइट, वर्टिकल 1 रहेगा, हॉरिजॉन्टल 12। नहीं पता, बहुत लोग। ठीक है, पता। ये जो है ना, ये हमेशा कम होगा ना वर्टिकल से। हमेशा, हाँ, स्लाइडिंग में वर्टिकल कम होगा हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि तू जब when you cover vertical distance ना, sorry, when you go up an inclined plane ना, you tend to walk more horizontal distance as compared with the height which you have. Stairs में वही होता है ना। पूरा इलेक्ट्रोलिसिस, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले तुमको? ठीक है। अभी फिर क्या किया उसके बाद? Tomorrow what are you going to do? Good. So whenever you come across this kind of statement, incline of 1 in 12, don't get confused. It is the relationship between the horizontal and the vertical. मतलब वो incline का measurement बता रहा है तुमको। मतलब बेसिकली वो लोग तुम्हें थीटा बताने की कोशिश कर रहे हैं। incline of 1 in 12 मतलब हाइट जब 1 होती है तो horizontal distance is 12, मतलब हाँ, तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट का रेशियो है। हाँ, तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट किसका रेशियो है? tan थीटा। tan थीटा इज एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, दैट इज 12/1। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1/12, आई एम सॉरी, 1/12। So they are saying that tan theta is 1/12.
Yeah, you can say that. This is 13. So now you know what is theta basically. Now you can figure out what is theta, or not exactly the angle, but you can use it in your question. अब उसने क्या बोला है कि he moves a distance of 25 meter up the incline of 1 in 12. मतलब ये hypotenuse कितना है? 25. Calculate the work done by him. नहीं, he moves a distance of 25 meter up an incline. Up an incline हमेशा ये distance होता है. When I say I'm going up an incline, so I'm actually measuring the distance of incline, not the vertical distance. But अगर ऐसा बोला होता कि he is getting displaced vertically by 25 meter, मतलब vertical distance. Wow, now we made add over Yes. Yes. So calculate the work done by him. कैसे बोला है ये? Against the gravity होगा, है ना? Against the gravity होगा, होगी ना जरूरत, क्योंकि हमें ये ढूंढना पड़ेगा ना कि अगर वो 25 मीटर ऊपर जाता है तो कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है उसका. tan थीटा 1/12 है, या फिर ये हाइपोटेनियस के टर्म्स में ले लेते हैं हम लोग. सर वो एस हॉरिजॉन्टली होगा, इंक्लाइन पे 25 ले सकते हैं. इंक्लाइन पे 25 ले सकते हैं. तो फिर डिस्प्लेसमेंट तो सीधा 25 हो सकता है. नहीं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल वर्क डन निकालना है. तो 25 पे कितना वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी. यस, आई थिंक. मतलब अगर वो 25 ऊपर जाएगा तो कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है. हम लोग वर्टिकल निकाल सकते हैं और हाइपोटेन्यूज की tan का वैल्यू मान देखो, इसको 1x ले लो, इसको 12x ले लो और इसको 25 ले लो, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम से x निकाल लो, वही तुम्हारा वर्टिकल डिस्टेंस होगा. क्योंकि ये हमें वर्क डन पूछा है, तो ये कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम है, और क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है तो वी विल अज्यूम दैट ही इज डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी. ही इज डूइंग वर्क बट अगेंस्ट ग्रेविटी, और अगेंस्ट ग्रेविटी निकालने के लिए mgh होता है फॉर्मूला, तो h चाहिए, इसलिए वर्टिकल डिस्टेंस. ये मेरा अजम्पशन है, गलत भी हो सकता है. अगर इंक्लाइन के अगेंस्ट पूछा होता तो एफएस cos थीटा आई थिंक fs cos थीटा से सेम आएगा आंसर. सर एफएस cos नहीं 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 आएगा. cos थीटा, fs cos थीटा लेते ही नहीं. fs cos थीटा, हाँ, नहीं लेते यार, नहीं लेते. हाँ, बट किसमें किसमें वो जो भी 9 में दिया था ना, उसमें डायग्राम दिया था जिसमें ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे है, तो उसको पुश करने के लिए उसको पुश कैसे किया था वो याद है. ये देखो, ये तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन था, मुझे डायग्राम अभी भी याद है. उसको हम ऐसे पुश कर रहे हैं. फोर्स देख इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है. यहाँ पे थोड़ी ऐसा कुछ है, यहाँ पे तो हम इंक्लाइन, मतलब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर चढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पे इंसिस्ट कर रहा हूँ. फॉर्मूला कुछ नहीं, एक्स ढूंढना है बेसिकली. mgh, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. h आ गया, x, x मतलब कैसे किया 1.9 कैसे. तो x इक्वल 25 है, तो 1 वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, हाइपोटेन्यूज 13 है, which is equal to 25, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं. 25 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, 12 स्क्वायर x, 12x the whole square. So 625 is equal to 145 x square. So x square is equal to 625 by 145, और फिर उसका रूट लेना है. तेरे को कितना आया आंसर? 1.9. तो इसको, हाँ, इसका 625 by 145, 150,
145 कितना आएगा? 145 square is equal to 625. हाँ मतलब 625 बाय 145 कितना आएगा? 5 से कम ही आएगा कुछ ना कुछ, 4 पॉइंट समथिंग। 1.9 है, डाउट में 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। 4 पॉइंट समथिंग आएगा। उसका रूट अप्रोक्सीमेट बता दे एक्स की वैल्यू। वो तूने जो किया है मुझे थोड़ा सा कैसे, मैंने क्या किया पता है? वो 1/12 का है ना, 1 in 12, उसको मैंने 1x और 12x ले लिया, और तेरा जो हाइपोटेनियस है उसको 25 रखा, और फिर पाइथागोरस थ्योरम डाल दिया। तो 625 बाय 145 कितना है? 4.3 ना, मतलब इसका जो रूट है 2.1 आना चाहिए, तेरा 1.9 आ रहा है, यूनिट रीसेट। लेट्स सी किसका करेक्ट है। ये मीटर में आया ना तुम्हारा 2.3, इसको बस केजीएफ से मल्टीप्लाई करो। वर्क डन हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट में ढूंढ लेते हैं, है ना। केजीएफ कितना है? 80 ना, 2.3 ना, या 2.1? हाँ 80 इंटू 2.1, 161 कितना समथिंग। 2.1 इंटू 80, 2.1 एग्जैक्टली आएगा नहीं शायद, क्योंकि 2.0 भी आ सकता है। ओके, सो अराउंड 160 समथिंग। इधर उधर है। ठीक है, 160 kgf meter. If I ask you to convert it into joules, हाँ into 10 कर दो तो 1600 joules, approximately 1600 joules और 160 kgf meter। चेक करें, समझा तुमको क्या किया? इंक्लाइन को कैसे डील किया? पाइथागोरस लगाया, डिस्प्लेसमेंट ढूंढा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। करेक्ट, वो लोग ने साइन थीटा लिया, एग्जैक्टली करेक्ट। वो लोग ने जूल में निकाला, हमने भी वही 1600 के अबाउट पकड़ा था उसको। सही है, वो लोग ने साइन लिया, जरूरी नहीं है, देखो मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है तुम इसको क्या लो, साइन लेके करो, कैसे लेके करो, तुम्हें बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, और उसके साथ तुम्हें फोर्स को मल्टीप्लाई कर देना। नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सीधा, बस। थर्ड वाला ट्राई करो। सेम, so it should be a correct answer if you solve properly.
ओके, सेम तरीके से। थोड़ा रूट बराबर नहीं लिखा जाता। हाँ ठीक, अगर MCQ होता तो आंसर सही होता, बट अभी उसमें भी चालाकी करते हैं, बहुत पॉइंट में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस करके देते हैं, मतलब तुम्हें एग्जैक्ट करना है, दैट्स अनफेयर। मतलब ऐसा, अगर आंसर है √2 तो वो लोग √2 के नजदीक वाली वैल्यूज दें, हाँ ऐसे करके दें, तो यू हैव टू फाइंड प्रॉपर्ली। एडवांस में मल्टीपल चॉइस राइट होता है, हाँ मोर देन वन, ऑप्शन सॉल्व करना पड़ता है। हाँ मोर देन वन मतलब हर एक पॉसिबिलिटी उसमें चारों का हाँ हाँ यस। टू भी करेक्ट हो सकते हैं चारों। बट मैंने ऐसा सुना है बहुत बार कि द आंसर्स आर वेरी प्रिटी ऑब्वियस विच अ पर्सन नेवर थिंक्स अबाउट। हम लोग हमेशा कॉम्प्लेक्स सोचते हैं और इतना इजी होता है ना कि मतलब ये था, ये तो मतलब पता ही था मुझे, और वो हम लोग नहीं। सो ऐसे खेलते हैं वो लोग साइकोलॉजिकली, कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट।